अभिषेक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है ना? शेयर कर दोगे मेरे साथ। ओके। सो सबके पास सिलेबस है? सिलेबस। हाँ सर। So formally we are starting the class. Okay. So subject is bio. कितनी रहा क्या? Biomedical instrumentation. It's not looking good. And the code is EC. 1 second. EC. I will share this, the course content and the course handout to the Google Classroom. Okay. EC 0712. Okay. The credit is 3. Okay. So basically in the module 1, what we are having, the statics and dynamics characteristics of the medical instrument. Okay. And the problem encountered with the measurements from human beings. Okay. These and some equivalent electrode circuits you have to make. Electrode potential, some transducer you have to see, type of electrodes, surface electrodes, needle electrodes, micro electrodes. Okay, these are very, very important as a measuring devices. Okay, so then we have pressure transducer, transducer for body temperature measurement, because so many pressure transducer are there, but which we are using to the human body or inside the human body, same case for the measurement of the temperature. Okay, so this is all about the first module. Then we have second module. Okay, कैसे means electrical conduction system of the heart, then block diagram of electrocardiograph, ECG leads, है ना? ECG के बारे में बेसिकली है. Okay, module 2. Physically you have to after seeing the block diagram, each part you have to understand, and how the ECG function we have to understand. Then in third module, blood flow meter you have to study. Okay, so many blood flow meter are there, so many types are there. Okay, we'll study one by one. This was for the third.
or a pacemaker, external, like this. These devices you have to study. And for fourth model, we have to look around X-ray machines, okay, CT scan, ultrasound imaging system. And the last one is only about the electric shock hazards. If we are doing measurement, there may be possibility of this case you have to consider. Okay. So while testing and while is there any chance of leakage current to the body? Okay. For because a little amount of current will damage the cells inside. Okay. So it's very important to take precaution and safety parameters before we are doing something with our body or we try to measure. Okay. So clear है? हाँ जी, कुछ बोल नहीं. So अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? I am audible? Yes, sir. कोई कुछ बोल. Yes, sir. इतनी देर से मैं बोल रहा पूछ रहा हूँ, बोलता नहीं तुम हैं? सो गया जी तुम लोग? Okay, no worry. चलो. So now we'll see what is biomedical. Okay, what is this field? Biomedical. बोलो. कल पढ़े थे ना हम लोग थोड़ा थोड़ा. So biomedical engineering, what is basic? मतलब what is basically it is? So see, it is a application of engineering principle. Okay, that is electronics, electrical, computer, mechanical, and other to the medicine and biology for the healthcare complications. Okay, जैसे हम डायग्नोस्टिक करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, देन रिकॉर्ड करेंगे, देन सम एक्शन लेंगे. ओके, सो what brings this engineering is it's bring or is combined together of all the concepts that we read in engineering, like electronics, electrical, computer, mechanical. Okay, ठीक है. So obviously it's a multidisciplinary branch which contains many areas, medical instruments that we will read right now, then signal and processing, biomaterial, telemetry, medical information, so many things are there. Okay, so ये कब स्टार्ट, कब हम है ना बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंट ये सब में हमने ज्यादा से ज्यादा है ना काम करना स्टार्ट किया? It's near about World War II. I am giving this information because you have to understand from where we have started. Okay. उसके बाद दोस्त मतलब 1970 के बाद से थोड़ा रैपिडली चेंज आया इस फील्ड में. ओके, सो मेनी नासा का प्रोजेक्ट और ये जब वो एस्ट्रोनॉट ऊपर भेजते थे तो उनके सामने ये चैलेंजेस आने लगे, क्योंकि ऊपर में जाने से बहुत सारी चीजें, मेडिकल कंडीशन, ह्यूमन बॉडी सेम बिहेव नहीं करता जैसा अर्थ पे करता है. तो फॉर मेजरिंग दिस दे हैव ट्राइड सो हार्ड कि कैसे हम एक पैरामीटर को मेजर करें और उधर ही से अर्थ पे हम उसका क्या बोलते हैं रिकॉर्ड आ जाए और हम उस पे एक्शन ले. ओके, so that time that was a breakthrough in the medical field that they have started. Okay, they have built some on a society,
for research purpose. Then IEEE इंजीनियरिंग इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारी चीजें होती रही इसके पीछे। ओके, तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू मिला जनरली। ओके, मैं ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा बना, ओके, तो बट मेनी इंस्ट्रूमेंट वेर डेवलप्ड इन बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इफ यू से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो फर्स्ट यूज्ड बाय एंथोवेन एंड a Dutch doctor. Okay, he invented the first practical ECG in 1903. It's very, very important, and he received Nobel Prize in medicine in 1924. Okay, तो ये कुछ हिस्ट्री है इसके, और बहुत सारे इसके बाद इन्वॉल्व सारी चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें आती गई, है ना। So if we talk about the main component of the instrument, okay, and what is instrument? Obviously something which records the physical parameter, है ना, records I'm saying is helps to, है ना, measure, record and display, you can say, is combined. Okay, so the main component of the, see, components of components of man instrument system. Okay, पहला है सब्जेक्ट, इसको हमको मेजर करना है। ओके, फिर स्टिमुलस, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर ट्रांसड्यूसर, कौन बोलेगा ट्रांसड्यूसर क्या होता है? फिर सिग्नल कंडीशन सर्किट। ओके, फिफ्थ इज डिस्प्ले डिवाइस, एंड लास्ट इज recording, data processing, and transmission equipment. Okay, now if we put this together into the block diagram, okay, into the block diagram, then suppose this is the patient, okay, ये patient है या जो body वाला subject है, okay, so this is the stimulus block, this would be the control feedback, control feedback, okay, and here we'll have the transducer block. कोई बोला नहीं ट्रांसड्यूसर क्या होता है बाबू? सिग्नल कंडीशनिंग circuit. Okay. Then we have display. ये इधर से, then we have display.
obviously. Then we have a record and data processing and transmission unit, recording, recording and data processing and transmission unit. Okay, so this is just a pictorial view. Okay, so obviously we'll going to measure something from the man body. Okay, maybe I am not discussing about what we will measure, just measure some physical parameter, obviously through the transducer. Now because the level of the signal is very less, what we get from the body is very less. Some electrical signal we will get. Okay, now this thing has to be processed, so we are using the signal conditioning circuit. इसमें बहुत सारा एम्पलीफायर ये वो है ना, फिल्टर सर्किट, देन डीएसपी, ये वो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाए. ओके, उसके बाद हम डिस्प्ले देख सकते हैं, या आपको अगर जरूरत है उसको रिकॉर्ड करके आगे के ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं. हम इसको आईओटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी, है ना, फिलहाल के लिए. बहुत सारी चीज के लिए इसके बाद हम यूज कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनल डेटा आ जाएगा. ओके, नाउ this stimulus and this feedback system will work, okay, according to our what we can say, our in many instrument what is happening is it's some require some external energy, okay, to measure that particular or to record that particular physical change in your body. Okay, sometimes it requires flash of light, sometimes it's required direct electrical stimulation of some nerve systems. Okay, externally कुछ हम एक रेफरेंस टाइप का कुछ दे के रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है. ओके, तो व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? कोई बोल नहीं रहा है. Sir, basically it's a device that converts signal into readable forms, makes signals readable. नहीं, ट्रांसड्यूसर ये नहीं होता बाबू. It's convert one form of energy to another form, another convenient form of energy. You can see. Suppose you want to measure a pressure, तो वो आपका एक बर्डन ट्यूब भी कर सकते. बर्डन ट्यूब समझते हो, ऐसे सी टाइप का रहता है. ओके, लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दैट. ऐसा एक रहता है, कुछ बड़ा हो गया, बट ऐसा ही एक ये रहता है. ओके, यहां से हम प्रेशर देते, और ये क्या करता है, बिकॉज ये ऐसा मटेरियल के साथ बना होता है, जब हम प्रेशर देते हैं ये थोड़ा मूव करता है. ओके, टिल्ट हो. एक सेकेंड, इसका वो घटाने दो, बहुत मोटा लिखता है. When we are giving a pressure, what will happen in this tube? It will bring, means it will bend. आप प्रेशर दोगे, हल्का हिस्सा यहाँ पे टॉप में ऐसे मूव करेगा. तो यहाँ पे ना गियर एंड पिनियन लगा के, ऐसा निडल लगा के, है ना, इतना फाइन ट्यून किया जाता है कि जितना मतलब कैलिब्रेट किया जाता है इसके अकॉर्डिंग कि ये आपको जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे वहां पे निडल चला जाए. आप देखो प्रेशर गेज रहता है ना, तो आपको ऐसा दिखता है. ओके, और ऐसा कोई इंडिकेटर है पीएसआई या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका ऐसे ऐसे मार्किंग है. ओके, तो जो भी जैसा प्रेशर आता है वो आपको दिखा देता है
कि 1 kg प्रेशर है कि 2 kg प्रेशर है, बट इनसाइड दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बर्डन ट्यूब। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, pressure is converted into the mechanical movement, means one form of energy is converted to the another convenient form of energy। तो जो ऐसा करेगा वो ट्रांसड्यूसर है। क्लियर है? क्योंकि अभी हम मैकेनिकली हमको इतना वैल्यूएबल नहीं है कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, मतलब ट्रांसमिट नहीं कर सकते। then what we'll do, we'll convert this information again into the electrical using some, बहुत सारे अभी तो आ गया, एलवीडीटी पहले यूज होता था बहुत, है ना। तो आगे हम उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकली भी देख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकली जब सिग्नल मिल गया तो हम उसको कितना भी कुछ भी प्रोसेस करके हम कंप्यूटर पे वो डेटा को ले सकते हैं, या कुछ हमको उस इंफॉर्मेशन पे और प्रोसेस करना और काम करने का है तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से वहां कहीं सेंड भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया ट्रांसड्यूसर? बोलो अभिषेक। यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर, एक बार हम पढ़ेंगे लेकिन फिर से मेरा दूसरा ही कॉन्सेप्ट था। नहीं, that concept is not right। ठीक है, तो नेक्स्ट यूनिट वाज, हम लोग कहाँ पे थे, भूल गए मैं, कौन सा सेक्शन थे? Yeah, then we have signal conditioning circuits। Okay, after getting the information from the transducer in the form of electrical, okay, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब हमको मिल जाएगा, मैकेनिकल तो यहाँ पे लगेगा, मतलब हम यूज ही नहीं कर पाएंगे मैकेनिकल इंफॉर्मेशन को। ओके, सो लास्टली हैव टू कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू electrical signal। then that information will go to the signal conditioning circuit। okay, and there it is going to be amplified। उसके बाद उसको हम फिल्टर करेंगे, नॉइस रिड्यूस करेंगे, फाइनली वो ट्रांसफर हो जाएगा डिस्प्ले यूनिट को और मेमोरी को फॉर फ्यूचर पर्पस। ओके, नाउ display device or display unit, what it will does, it will take information from the signal conditioning unit, the final output of the signal conditioning unit। okay, and it will going to convert into the prescribed, obviously digital convert करना होगा क्योंकि डिवाइस आजकल डिस्प्ले डिवाइसेस सब डिजिटल है, तो जो हमारे पास सिग्नल मिलेगा सिग्नल कंडीशनिंग से वो एनालॉग इन नेचर होगा। ओके, so inside the display device we have the digital analog to digital converter, and finally you will see in the display, and same thing will also go to the recording and data processing transmission unit also for further use of this information। and feedback device unit is what, it is a necessary or desirable to have the automatic control of stimulus। okay, जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे किसी मतलब केस को मेजर करने के लिए, जो मेन इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ओके, क्योंकि आप ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते, अगर हमको वोल्टेज देने का है तो वो भी एक प्रॉपर कितना मिली वोल्ट और कितना करंट हम मिली एम्पियर में हम सप्लाई करेंगे, इसके लिए डिसाइड करने के लिए भी we should have some units। okay, and it will take command from our main instrument depending upon the output what we are getting, it is going to give the command to the stimulus section, and accordingly it is going to give some
energy to the human body or any form of energy to the human body to measure some parameters. Okay. Now instrument जो हमारा है बेसिकली आपके सिलेबस में पढ़ने का है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द biomedical instrument. Okay, so the next topic is static and dynamic characteristics of bio. तुम लोग का मेजरमेंट था ना जी पढ़ने के लिए? हाँ? Okay. So what is a static characteristics of instrument or biomedical instrument? क्या क्या है? तुम लोग पढ़े होगे, इंस्ट्रूमेंटेशन तुम्हारा सब्जेक्ट था ना? यस सर। क्या क्या है बोलो तो? पूरा याद नहीं होगा फिर भी ट्राई करने का है। Sir, accuracies. ठीक है बोलो बोलो ठीक है ठीक बोलो। Sir, accuracy, then precision, and sir, ability to reproduce. यही दो तीन पता है। बेसिकली जो स्टैटिक्स, देखो किसी भी इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, वो कैसा बिहेव करता है, या वो इंस्ट्रूमेंट किसी, क्योंकि जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो एक कोई सर्टेन है ना, या तो वो डीसी वैल्यू कुछ एक वैल्यू पे काम कर रहा है, या तो लो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, या तो सडन उसके सामने बहुत हेविली चेंज हो जा रहा है इन्वायरमेंट, है ना, मतलब इनपुट फ्लैक्चुएट कर रहा है बहुत ज्यादा, या तो जो इन्वायरमेंट है उसका कंडीशन चेंज हो जा रहा है। तो जब ये सब कंडीशन एक साथ आता है बेसिकली, तो क्या होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट देने का जो कैपेसिटी है वो चेंज हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ पैरामीटर्स को हम कैटेगरी वाइज में बांट देते हैं। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है, गुण। जब स्टैटिक मतलब क्या, कोई इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो रहा है या कोई कंडीशंस ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है ना। डायनेमिक मतलब क्या, कि उसके क्रॉस है ना सम इनपुट्स और जो चीजें उसके जो वो इन्वायरमेंट है या और जो कंडीशंस है वो चेंज हो रहे। तो स्टैटिक्स में वही जो अभिषेक बोला, एक्यूरेसी आएगा। सो व्हाट इज एक्यूरेसी? Sir, up to what extent it's Sir, up to what extent it is showing correct result? Precision? Sir, precision is how minute it can measure. How minutely?
लाइक सर एक गोल्ड वेट करने का जो वेइंग स्केल होता है उसका प्रिसीजन मच ग्रेटर होता है देन जो नॉर्मल वेइंग स्केल होता है। मतलब मतलब कितना छोटा डिवीजन वो मेजर कर सकता है। हम्म, सर लाइक वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन अ नॉर्मल रूलर। हम्म, ठीक है ठीक है। So we have in the statics characteristics what we have, first one we have accuracy. Okay, so static characteristics describe the performance of an instrument for a DC or very low frequency inputs. Okay, the property of the output for a wide range of constant input demonstrate the quality of the measure. Okay, including non-linear and जो भी उसके साथ है ना स्टैटिकल इफेक्ट्स है। क्या होता है, सब कोई इंस्ट्रूमेंट और जो सेंसर है सच एज, मतलब तुम ले लो एक डिवाइस लाइक पीजो इलेक्ट्रिक। ओके, ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्स करता है ओनली टाइम वेरिंग इनपुट्स एंड हैव नो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कोई स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो सिर्फ डायनेमिक जो चेंजेस है उस पर ये बिहेव कर, मतलब आउटपुट आता है। सो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया एक्यूरेसी, पहला लिखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा है, आप दोबारा पढ़ रहे हो ये सब चीजें, प्रिसीशन। ओके, थर्ड वन इज रिजोल्यूशन। क्या होता है रिजोल्यूशन? हम्म, बोलो। चौथा जो आपका है, अरे रिजोल्यूशन बोलो, द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, बोलो। What is resolution? The smallest incremental quantity that can be measured with a certainty in the is the resolution. Okay. Repeatability क्या होगा? ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ऐसे नहीं पढ़ते बाबू, ये सब चीजें तो आना चाहिए। Repeatability. These are the static characteristics of, ये देखो एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिपीटेबिलिटी। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ओके, और एक्यूरेसी वर्सेस रिपीटेबिलिटी नाम ही है। सेम कंडीशन पे सपोज आप रीडिंग लो ना, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट 5.2 आएगा, फिर 5.1 आने लगेगा, फिर 5, अभी तो मल्टीमीटर में देखते हो ना, सेम कंडीशन है, बट हाउ द रीडिंग इज नियर टू द ट्रू वैल्यू। हर बार जब आप 10 बार रीडिंग लेते हो तो 10 बार सेम ही नहीं आने वाला। ओके, ड्यू टू सम हिस्टेरेसिस लॉसेस, ओके, इन द इंस्ट्रूमेंट। तो कितना क्लोज है वो ट्रू वैल्यू के। ओके, so this is the statics characteristics. डायनेमिक कौन बोलेगा?
ये सब मैं फिर से पूछूंगा कल. Everybody please go carefully. What is accuracy, precision, resolution, repeatability? Okay. What is dynamic characteristics of any measuring instrument? अभी तो बोले हम. So dynamic characteristics of a measuring instrument refer to the case where the measured variable changes rapidly. Okay. ठीक है. क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा रैपिड चेंज होगा ना, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज को समझ ही नहीं पाए. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना फास्ट है या कितना गुड रिस्पॉन्स करता है. अगर उसका जो इनपुट्स है या उसका जो वेरिएबल है वो मेजर्ड वेरिएबल है जो रैपिडली चेंज हो रहा है, उसको वो रिस्पॉन्स कर रहा है. जैसे आप देखो, मान लेते हो तुम क्या बोलते हैं, जो हमारा पल्स होता है, देखते हो कितना फटाफट फटाफट वो लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 70 या 70 से ऊपर रहता है ना पल्स रेट. अभी सपोज कोई जो डिवाइस से हम मेजर कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है उतने टाइम, तो एरर आएगा रीडिंग में, है ना. तो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है जिसको हम मेजर या जिसको हम स्टडी करके हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसका डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, मतलब पोजीशन क्या है, वेदर इट्स गुड और बैड. ओके. सो द अमाउंट ऑफ टाइम to response is depend upon the resistance, capacitance, है ना, dead time of the measuring instrument, जो inside जो सारा सर्किटरी और भी लगा हुआ है, क्योंकि उसमें कैपेसिटर का इन्वॉल्वमेंट है, इंडक्टेंस का इन्वॉल्वमेंट है, मास का इन्वॉल्वमेंट है. तो बहुत सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट में लगी रहती है. आप इनपुट चेंज करोगे तुरंत ही आपको आउटपुट नहीं मिलने का है, देयर इज ए लैग. ओके. आफ्टर गेटिंग चेंज at the input side and same change should reflect to the output, it will take some time. Okay. So the main characteristics of main dynamic characteristics of the system are, पहला तो speed of response और response time, ये बहुत important. Speed of response, okay, and response time. Okay. दूसरा है lag. अगर lag हो रहा है तो how much. Okay. Third one is fidelity. And चौथा